ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے، اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ اس خوبصورت پنڈال میں تشریف فرما معزز خواتین و حضرات، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خصوصاً اہلیان سیر منڈی کا، ہمارے بھائی کامران صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شہید کشمیر مقبول بٹ کی یادگیری کے لیے اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا اور ہمیں آپ کے ساتھ ایک مختصر سا مکالمہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جس طرح مجھ سے پیش رو مقررین نے آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر اپنا نقطہ نظر رکھا اور شہید کشمیر کی جدوجہد کے بارے میں مختصراً اپنی بات کی، میں بھی اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ کہوں گا کہ آج سے 39 سال قبل اس ریاست کے ایک غیرت مند بیٹے نے اپنی پوری کنونشن کے ساتھ، اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، باغیرت اور بجرت قوموں کے رہنماؤں کی طرح دہلی کی تہاڑ جیل میں، اس ریاست کے قابض ایک ظالم ملک کی جیل میں شان قلندری سے، بہادری سے چلتے ہوئے تختہ دار پر چڑھا اور اس کو چوما اور اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ مقبول بٹ اگر چاہتا تو وہ اپنی جان بچا سکتا تھا، مقبول بٹ اگر چاہتا تو یہ ہمارے آج کے جو بہت سارے لیڈران ہیں، ان کی بنسبت وہ زیادہ خوبصورت بھی تھا، زیادہ پڑھا لکھا بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، تو وہ کوئی کرسی بھی حاصل کر سکتا تھا، وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے نسل کے لیے مفادات بھی اٹھا سکتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قدرت کی طرف سے انسانوں کے ذمے کچھ کام لگائے جاتے ہیں، ان کا کردار، ان کی ڈیوٹی متعین کر دی جاتی ہے۔ یزید بھی خدا کی ہی مخلوق تھا اور امام حسین بھی خدا کی ہی مخلوق تھے، ڈیوٹی الگ الگ تھی۔ یہ جتنے چرند پرند ہمیں نظر آتے ہیں، عقاب جو ہے، باز، شاہین، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، اور کوا اور گدھ بھی خدا کی مخلوق ہے، ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ کسی کو گندگی کھانی ہے، کسی کو مردار کھانا ہے، اور کسی کو باعزت طریقے سے شکار کر کے تو اپنا رزق پورا کرنا ہے۔ یہ اللہ نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، اللہ نے شروع سے قافلے متعین کر دیے ہیں۔ حق کا قافلہ ہے، باطل کا قافلہ ہے، جن کو توفیق ملتی ہے وہ حق کے ساتھ چلتے ہیں، جن کو نہیں توفیق ملتی وہ باطل کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو مقبول بٹ نے، بہت سارے لوگ شاید اس بات سے واقف نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ انڈیا نے زبردستی پکڑ کے تو مقبول بٹ کو پھانسی میں چڑھا دیا اور کشمیریوں کے ساتھ اس نے بڑا ظلم کیا۔ انڈیا نے ہی پھانسی پہ چڑھایا، پکڑ کے ہی چڑھایا۔ لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب مقبول بٹ کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی تو وہ جیل توڑ کے، یہ سیز فائر لائن کراس کر کے وہ یہاں پر آگے تھے، آزاد کشمیر میں آگے تھے، اور اس پھانسی کی سزا کی موجودگی میں دوبارہ جانا وہاں پر اور دوبارہ گرفتار ہو گئے تو پھانسی کی کوٹھڑی تک پہنچنا، اس میں مقبول بٹ کا ایک ذاتی فیصلہ، ذاتی رضامندی، ذاتی ارادہ تھا۔ اور وہ ارادہ یہ تھا کہ جب شملہ معاہدے کے بعد ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح سے سمیٹنے کی کوشش کی گئی اور انڈیا پاکستان کا سرحدی تنازع بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت مقبول بٹ نے کہا کہ اب یہ ایسا ٹائم ہے کہ اس مسئلے کو دوبارہ زندہ رکھنے کے لیے اور اس قوم کو آزادی کی جدوجہد کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے، مایوسی اور نا امیدی کو شکست دینے کے لیے کسی رہنما کا آگے بڑھ کر قربانی دینا ناگزیر ہو چکا۔ ہمارے رہنما یا ہم جیسے لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا مرے،
دوسرا آگے جائے اور ہم اس کے خون پر یا اس کی قربانی پر سیاست کرنے کی کوشش کریں، لیکن مقبول بٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مرحلہ ایسا آ گیا ہے کہ اب کسی رہنما کو آگے جانا پڑے گا، کسی لیڈر کو قربانی دینی پڑے گی، اور اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا اور آگے بڑھا، اور بہت بڑے باوقار طریقے سے، بڑے باعزت طریقے سے جو ہے وہ اس نے دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی کے پھندے کو چوما۔ اس طرح میں نے اس ماہ کے دوران کافی اور جگہوں پہ بھی یہ بات کی کہ اس جیل کا عملہ، وہاں کا ریٹائرڈ پولیس سپرڈنٹ جو ہے وہ آج بھی، جو اس کی یادداشتوں کی کتاب ہے، وہ کوئی بھی آدمی دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، وہ انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب مقبول بٹ جیل میں تھا تو اس جیسا باوقار اور پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، شائستہ، تہذیب یافتہ قیدی میں نے اپنی پوری سروس میں نہیں دیکھا، اور میں اس سے انگریزی پڑھتا تھا، انگریزی سیکھتا تھا اور اس سے سیاست سیکھتا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب مقبول بٹ کو پھانسی دے دی گئی تو اس کے بعد اس جیل میں ایک اور صورتحال پیدا ہو گئی کہ یہاں قیدیوں کو اور پولیس کے عملے کو مقبول بٹ نظر آنے لگا مختلف جگہوں پر، کبھی پھانسی کی کوٹڑی کے باہر، کبھی اپنی بیرک کے باہر، کبھی جیل کے لان میں، احاطے میں کوئی قیدی آتا یا کوئی پولیس والا آتا اور آ کے مجھے بتاتا کہ میں نے مقبول بٹ کو دیکھا ہے سفید کرتے اور پاجامے میں ملبوس، جو اس کا ڈریس تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ میں خود بھی کسی جیل کے تنہا گوشے میں، ویران علاقے میں سیکیورٹی گارڈز کے بغیر نہیں جاتا تھا، نہ کوئی اور جاتا تھا۔ اور اس نے لکھا کہ میں خود اس بات پہ یقین نہیں کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ میں جا رہا تھا کسی جگہ پہ، میرے ساتھ سیکیورٹی گارڈ تھے، تو ان میں سے ایک سیکیورٹی گارڈ نے چلانا شروع کر دیا کہ وہ دیکھو سامنے مقبول بٹ کھڑا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہاں ہے، تو اس نے اپنے مذہب کے مطابق قسم اٹھا کے کہا کہ وہ ابھی سامنے کھڑا تھا، میں نے ابھی اس کو دیکھا ہے، ابھی یہاں پر کھڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مقبول بٹ جیل سے جانے کے بعد بھی وہ یہاں پر موجود ہے، اور وہ اس ناانصافی اور اس ظلم کے خلاف آج بھی لڑ رہا ہے۔ یہ تو ایک اور سطح کی بات ہو گئی، لیکن اگر ہم اس کو دوسری طرف دیکھیں، اس کو فکری سطح پر دیکھیں، اس کو نظریاتی سطح پر دیکھیں، تو مقبول بٹ تو آج سیر منڈی میں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ مقبول بٹ تو کوٹلی کے گلی کوچوں میں جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، مظفر آباد میں ہے، برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، انڈین ہیڈ کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے۔ کون سی جگہ ہے اس مہینے میں، کون سی جگہ، کون سا ایسا علاقہ، کون سا دشت و بیاباں ہے اس وطن کا جہاں مقبول بٹ نہیں چمک رہا ہے، جہاں اس کا جھنڈا نہیں لہرا رہا ہے، جہاں اس کی تصویر گردش نہیں کر رہی ہے، اور وہ کسی کو کوئی اسکیم نہیں دے رہا ہے، کسی کو زکوٰۃ کا چیئرمین نہیں لگا رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ کوئی ثوابدیدی عہدے پر منتخب کرنے کے لیے کسی کو نہیں بتا رہا ہے، وہ تو چلا گیا اس دنیا سے۔ لیکن آج بھی سب سے زیادہ اس ریاست میں جس تصویر سے محبت کی جا رہی ہے، جس تصویر کو اٹھایا جا رہا ہے، اور جو تصویر ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ بن گئی عالمی برادری میں، وہ مقبول بٹ کی تصویر ہے، وہ مقبول بٹ ہے، وہ اس کا خون ہے، وہ اس کی قربانی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے باعزت، باوقار، بہادر قوموں کی طرح کہ اپنی تاریخ کو، اپنے اکابرین کو، اپنے رہنماؤں کو سمجھا جائے، سنا جائے کہ کون سے لوگ تھے جو اس ریاست کی جو ہے وہ نمائندہ ہے یا اس ریاست کا چہرہ ہے۔ بڑے بڑے دعوے ہیں یہاں پر، بہت بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، بڑی ذہین قوم ہے، بڑی بہادر قوم ہے، دلیر ہے، جرأت مند ہے۔ میں جب عدالت میں جاتا ہوں تو مجھے واقعی پتہ لگتا ہے کہ بڑی جنگجو قوم ہے۔ جب میں تھانے میں جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے واقعی ہماری قوم بڑی جنگجو ہے، سگے بھائی کو قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی ہے، سگی بہن کا گھر اجاڑنے سے بھی باز نہیں آتی ہے۔ جب جیل میں جاتا ہوں تو جیل کی بیرکیں بھری ہوئی بتاتی ہے، بڑے بہادر لوگ ہیں، بڑے جان باز ہیں، انہوں نے تو اپنے پڑوسی کی زمین ہتھیا لی اور اس کو فائر مار کے جو ہے وہ جیل میں آ گئے ہیں۔ اتنے بہادر ہم لوگ ہیں، اتنے جری لوگ ہیں کہ یہ جیلیں، یہ تھانے، یہ عدالتیں جو ہیں یہ ہماری گواہی دے رہی ہے کہ ہم بڑے بہادر ہیں۔
बड़े बड़े कबीले हैं हमारे, बड़े राजपूत, चौधरी, सैयद, मलक, हमारी तो पगें, हमारे तो शमले इतने बड़े बड़े हैं कि वो तो नीचे आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब रियासत की आजादी की बात आती है, जब पूरे मुल्क की बात आती है, उस वक्त जब नजर दौड़ाते हैं तो सवाए शर्मिंदगी के कुछ नजर नहीं आता। उस वक्त बहुत शर्मिंदगी होती है, बड़ा दुख होता है जब यहां पर आजाद कौम के लोग भीख मांगने आते हैं तो मुझे तो वो भी अपने से बेहतर नजर आते हैं। जब आजाद कौम के लोग फेरियां लगाने वाले, घर घर में जाकर सौदे बेचने वाले, पालिश करने वाले, मजदूरियां करने वाले आते हैं तो उनको देख के भी एहसास से कमतरी होता है कि है तो आजाद। बंदा सोने के पिंजरे में बंद हो तो वो पिंजरा ही होता है, वो कोई उसका बड़ापन नहीं होता, वो उसकी कोई बड़ाई या उसकी इज्जत नहीं होती कि फलाना आदमी बड़ा जी बड़ा बड़ी इज्जत वाला है, वो तो सोने के पिंजरे में जिंदगी गुजार रहा। तो हमारा हाल ये हो गया है कि इन दो दो टके के लीडरों ने, जिनकी ना कोई औकात थी, जिनकी ना कोई तालीम थी, जिनका ना कोई रोजगार था, जो ज़कात खाते रहे, जो सड़कें खाते रहे, जो नालियां खाते रहे, जो जंगल काट के खा गए, जो गरीबों का पैसा खा गए, जो चौकियां, अस्पताल, सफाई सुथराई, हर चीज का पैसा, हज का पैसा, उम्रे का पैसा लूट के खा गए, वो आज हमारे रहनुमा बन गए हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की और बात क्या हो सकती है? और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। हमारा ये ग्राउंड, ये जमीन, ये शहर, ये गलियां, ये चीख चीख कर बता रही है, चीख चीख कर बता रही है कि हम किन के हथे, हम किन चोरों के हथे चढ़े हुए हैं गुज़श्ता 75 साल से, किन छोटे लोगों के हाथों में हम चढ़ गए हैं, जिनके नाम तो बड़े थे लेकिन किरदार बहुत छोटे थे। जो यहां से जब ये क्रॉस करते हैं, कोहाला पुल क्रॉस करते हैं, तो उनकी औकात हमें बताने के लिए फयाज चौहान जैसे दलाल जो है वो टीवी पे चढ़ के बताते हैं कि तुम्हारी कश्मीरियों की औकात क्या है, हमारा एक सूबेदार तुम्हें कान से पकड़ के निकाल सकता है। जिनकी औकात बताने के लिए फिरदौस आशिक़वान असेंबली में उठ के खड़ी होती है और कहती है तुम कौन से वजीर आजम हो, हमारे एक ठोकर की मार हो, तुम्हें अपनी औकात में अपने पजामे में रहना चाहिए। उस वक्त पता चलता है अच्छा राजा साहब जो थे या सरदार साहब जो थे हमारे, उनका क्या हाल हो गया है औलाड़ से पार जाने के बाद या कोहाला से पार जाने के बाद। तो ये लानत हमने खुद अपने गले में डाली है। बुला बुला के लाते हैं, बुला बुला के गैर मुल्की झंडे, बुला बुला के गैर मुल्की पार्टियां, बुला बुला के गैर मुल्की लीडर उनके आगे नाचते हैं, भंगड़े डालते हैं, पैसे इकट्ठे करके, चंदे इकट्ठे करके, कभी बिलावल को सजाते हैं, कभी रायगढ़ को सजाते हैं, कभी बनी लाला को सजाते हैं। उनके लिए गिरफ्तारियां देने के लिए यहां से जमान पार्क लाहौर जा रहे हैं। इमरान खान को प्रॉब्लम हो गया है, आजाद कश्मीर के लोग जाके गिरफ्तारियां देंगे। नवाज शरीफ को प्रॉब्लम हो गया है, मरियम नवाज आ गई है, अपनी जो है वो स्किन सर्जरी करवा के यहां से जाएंगे काफले लेके, बरादरियां लेके, और जाके जो है वो उसका इस्तकबाल करेंगे। और जो यहाँ पे ये जो जुल्म हो रहा है, यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हड्डी टूट जाए, यहां से भागो जाके पता नहीं फलाने जनरल के पास सदर में जाओ वो जोड़ेगा, फलानी जगह पे जाओ, फलाने पीर के पास फतेह जंग जाओ वो फूंक मारेगा, फलाने मौलवी के पास चले जाओ वो तवीज देगा। ना हमारा मौलवी अपना, ना हमारा पीर अपना, ना हमारा लीडर अपना, ना हमारी पार्टी अपनी, ना निसाब अपना, ना इलाका अपना, ना सियासत अपनी, और बने हुए हम बहुत बड़े बड़े फन्ने खान हैं कि जी हम तो पता नहीं किसी से कम है ही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, इस कौम के लिए बहुत जरूरी है। आज इस कौम के बच्चे, इस कौम के बूढ़े, इस कौम की माएं, खुदा की कसम 80% लोग जो है उनको रातों को नींद नहीं आ रही है। 150 रुपया किलो आटा, 900 रुपया किलो घी, 400 रुपया किलो चावल, 500 रुपया किलो दाल, 750 रुपया किलो मुर्गी का गोश्त, 4000 रुपए का सिलेंडर, बिजली है ही नहीं, 10-10 हजार रुपए के छोटे छोटे घरों के बिल आ रहे हैं, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। और ये तो हमें बताते रहे कि महाराजा बहुत बड़ा जालिम आदमी था, उसने टैक्स लगा दिया था हमारे चूल्हे पर। महाराजा
चूल्हे पर टैक्स लगाया तो मुल्क तोड़ दिया। आज चूल्हा बंद हो रहा है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ये बैनर अभी उतरे नहीं है, ये देखें सामने बैनर लगे हुए हैं, एक से एक नडर, बहादुर, बेबाक, बेलोस तर्जमान जो है वो इस कौम के, इनके बैनरों से अभी ये पूरे का पूरा आजाद कश्मीर आलूदा हुआ। 1.5 महीना इन्होंने हमारा दिमाग चाट के रखा। हर मोहल्ले के अंदर जी मैं बड़ा लीडर हूं, मैं जो है ना वो आपके मसाइल हल करूंगा। वो 1.5 महीना हो गया है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है। ये कहाँ है ये नुमाइंदे जो 45,000 नुमाइंदे आजाद कश्मीर में जो है वो इन्होंने बनाए हैं पिछले दिनों में? ये किधर है ये चेयरमैन वेयरमैन और ये जो काउंसलर है? ये आज लोगों के उसके लिए निकलते क्यों नहीं है? हम शहर में जाते हैं तो जी नेशनलिस्ट निकले, लिबरेशन फ्रंट वाले बाहर आए, एहतजाज करें, फलान करें, आजादी का ठेका भी हम लें, बंदे की जो है वो मरने का ठेका भी हम लें, और उसके बाद जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ बजट खाने के लिए। और खुदा की कसम कितने जुल्म की बात है कि जब ये मुंह खोलते हैं तो कहते हैं ये रात एजेंट है, ये पता नहीं किसके पेरोल पे है, किससे पैसे लेते हैं, चंदा लेते हैं। यार कोई खुदा का खौफ करो। 1 खरब और 60 अरब रुपया 1 साल का तुम बांट के खा जाते हो और उसके बाद हमें कहते हो कि हम पैसे खाते हैं। पूरे मुल्क की ज़कात तुम खा जाते हो और हमें कहते हो हम चंदा खाते हैं। दिल्ली से और इस्लामाबाद से पकड़ पकड़ के पार्टियां लाते हो, उनको यहाँ पे बिठाते हो और उसके बाद हमें कहते हो कि हम किसी के एजेंडे पर हैं, हम अमेरिका के एजेंट हैं और हम फलाने के एजेंट हैं। अमेरिका का एजेंट बाजवा से बड़ा कौन हो सकता है? शहबाज शरीफ से बड़ा अमेरिका का एजेंट कौन है? पाकिस्तान की फौज से बड़ा अमेरिका का एजेंट कौन है? ये 75 साल से हमें गालियां देते रहे और कहते रहे ये न हो तो हम तो रात को सो नहीं सकते हैं। वो भाई ये हैं, हम आज भी रात को नहीं सो सकते, परेशान हैं, इनकी वजह से परेशान हैं। ये फौज पाकिस्तान को पता नहीं क्या बना देगी 75 साल के बाद। आज पता लगा क्या बना दिया। आज बलोची मर रहा है, पठान मर रहा है, खाने पीने को कुछ है नहीं। आज का बयान देख रही है, अखबारात पड़े होंगे शेर मंडी के अंदर। चले उसका जो आसफ है, इनका वजीर दिफा जो है, उसका बयान है दिवालिया हो चुका है मुल्क। इसका क्या मतलब होता है दिवालिया हो चुका है? मोहल्ले में अगर कोई बंदा कंगाल हो जाए तो कोई उसको 5 रुपए नहीं देता है, देगा वापस कहां से? वापस कहां से दोगे अगर तुम्हें दे? आज दर दर भीख मांगने के लिए जाते हैं लोग, दुत्कारते हैं, मुल्क दुत्कारते हैं आगे। वापस कहां से दोगे? जी देंगे जी, देंगे जी, देंगे जी। अच्छा दोगे तो चलो सिगरेट 250 से 500 के कर दो, चलो घी जो है वो 200 से 400 का कर दो, बिजली में भी कर दो, गैस में भी कर दो, टैक्स लगा दो, हर चीज पे, कब्रों पे टैक्स लगा दो। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूं ना, ये रोज खबरें लगी हुई हैं, बड़ी कब्रों पे टैक्स, फलाने पे टैक्स, मरने पे टैक्स, जीने पे टैक्स, हवा का टैक्स। ये लोग रोज आप जाए अस्पतालों में, जिसको सांस की बीमारी है उसके मुंह पे एक सिलेंडर चढ़ा हुआ है ऑक्सीजन का, ये हवा का टैक्स है, पैसे देके ऑक्सीजन खरीदे। एक ऐसे मुल्क में जिसको जन्नत नजीर कहते थे, जिसमें दरिया, पहाड़, नदियां, जंगलात, मादनियात, खूबसूरती, हुस्न, कुदरत जिस पे मेहरबान थी, आज उसका हालत ये है कि उसके दरख्तों पे 1.5 मण मिट्टी जमी हुई है। बाहर खुली फजा में सांस लेने की पोजीशन नहीं है। ये किसने किया है? ये लिबरेशन फ्रंट ने नहीं किया, ये मकबूल भट्ट ने नहीं किया है, ये क्यूम खान का काम है, ये सिकंदर अयाज का काम है, ये बैरिस्टर सुल्तान का काम है, ये उनकी पार्टियों का काम है जो सुबह एक पार्टी में सजदा करते हैं, शाम को दूसरी में, दोपहर को तीसरी में। जितने बच्चे जिनमें मेंबर तब्दील नहीं करते, इतनी पार्टियां तब्दील करते, पता ही नहीं है, ना कोई नजरिया है, ना कोई सोच है। बरादरियों को हंका हुआ है, पीछे 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 चलो। 75 साल से आज अशर ये कर दिया है, ना खुदा ही मिला, ना मसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज न इंडिया की तरफ जा सकते हैं। कल किसी ने मजाक में लिखा हुआ था भारतीय मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए मोदी का पैगाम, किसी ने सोशल मीडिया पे मजाक में लिखा हुआ था कि बंदे के पुत्र बन जाओ, नहीं तो पाकिस्तान में शामिल कर दूंगा। यानी ये अब गाली बन गई वहां के लोगों के लिए, बंदे के पुत्र बनो, नहीं तो जाओ पाकिस्तान में मरने के लिए। तो हमारा कोई बैर नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि रावलपिंडी को उठा के कश्मीर में शामिल कर दो, दिल्ली को, कलकत्ता को कश्मीर में शामिल कर दो, कराची में कश्मीर में।
جو जिस का जुग्राफिया है, जो जिस का हक है, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। यही मजहब भी है, यही जमहूरियत भी है, यही इखलाकियात है, यही इंसानियत है। हमने कोई पाकिस्तानियों के खिलाफ जंग नहीं की है या हिंदुस्तानियों के खिलाफ, उन्होंने हमारे खिलाफ जंग की है। जब घर पे हमला होगा तो गैरत का तकाजा है कि दिफा किया जाए, इखलाकियात का तकाजा है कि दिफा किया जाए। अगर आपके घर पे कोई झंडे लेके दौड़ आ जाए और आप छुप के कोने में बैठ जाएं तो फिर लोग कहेंगे यार इसकी गैरत कहां मर गई, ये कैसा आदमी है जो अपने घर का दिफा नहीं कर सकता है। तो ये रियासत जिसमें जैसे ही उलाड़ के पुल से, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं, शायद आपका भी होगा, कि मैं कहीं भी गया हुआ हूं, लेकिन जब हुलाड़ का पुल क्रॉस करता हूं तो खुदा की कसम एक अजीब सी खुशी और हिफाजत दिल में आ जाती है। अपने घर में आ गया हूं, अपनी रियासत में आ गया हूं, अब मैं फन खान हूं यहाँ पर, मुझसे बड़ा कौन है, ये दिल में एहसास पैदा होता है। ये अपना घर जो है ये हिफाजत है, अपनी रियासत हिफाजत है। आज कोई अरबी यहाँ पे मजदूरी करता हुआ नहीं नजर आ रहा, उनके भी पेट है, उनको भी पैसे चाहिए। कोई अंग्रेज नहीं नजर आ रहा मजदूरी करता हुआ। ये हम ही क्यों, हमारे बच्चे क्यों, जिनकी बेटियां कभी दुबई से आ रही हैं, कभी इंग्लैंड से आ रही हैं, हमारे बच्चे उधर ही दफन हो रहे हैं, हमारी माए, हमारे भाई उधर दफन हो रहे हैं, इसलिए कि पैसे नहीं है, घर आगे क्या करेंगे। और ये जगह जो है, ये रियासत कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक टके की सिक्योरिटी नहीं है इस वक्त, ना तालीम, ना इलाज, ना रोजगार, ना सिक्योरिटी। ये चार चीजें जो थी, ये इनका काम था कि ये इस छोटे से खित्ते में 4000 मुरब्बा मील में ये तो दे देते हमें, पूरे का पूरा मीरपुर बो दिया। ये आधा कोटली जो है वो उस पे डैम बन गया, मुजफ्फराबाद में 2 दरियाओं के रुख मोड़ दिए, वहां पे डैम बन गए, उलाड़ पे बन गया, आजाद वतन में बन गया। बिजली अपने लिए 1 टके की नहीं ले सके। ये लीडर है। 2 नहरें पूरे पाकिस्तान को, आधे पाकिस्तान को सराब करने के लिए मंगला से पानी की जाती है। ये अपने भिम्बर के लिए एक पाइप लाइन नहीं ले सके कि उस डैम से, अपने ही डैम से, अपने ही पानी से अपनी जमीन को सराब कर सके। और जब हम बातें करते हैं तो कहते हैं ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। मेरा चाचे का पुत्र है पाकिस्तान, तो मैं उसकी दुश्मनी और दोस्ती के चक्कर में अपना घर तबाह करूं, या जो है वो इंडिया की दोस्ती और दुश्मनी के चक्कर में अपना घर जो है वो तबाह करूं। तो इसलिए आज के हालात में ये बहुत जरूरी हो गया है कि अपने हक को पहचानो, ये आपका हक है, ये तस्लीम शुदा मामला है अक़वाम आलम में, कोई नई बात नहीं है, कोई अलहदगी की तहरीक नहीं है, ये किसी मुल्क को तोड़ने की तहरीक नहीं है, ये हमारे हक की तहरीक है जिसको दुनिया ने तस्लीम कर रखा। हम 75 साल से लड़ रहे हैं इसके लिए, और इसके लिए जरूरी है कि ये दोनों कातल और बातल हो जाए, यहाँ से बाहर निकले, अपने अपने मुल्कों में जाए, उनको संभाले, वहां पर ये उनको रोटी दे, उनको पानी दे और उनका ख्याल करें। ये कश्मीरियों का ख्याल करना छोड़ दे। ये अगर हमारा ख्याल करना छोड़ेंगे तो अल्लाह की कसम हम बहुत खुशहाल हो जाएंगे। हम वही लोग हैं जो 47 से पहले इन्हीं जमीनों से खाना खाते थे, इन्हीं चश्मों से पानी पीते थे। हमारे लिए किसी चीज की, किसी फसल की, किसी सब्जी की कोई जरूरत ही नहीं थी। और इन्होंने हमें इतना गंदा किया, इतना गंदा किया कि आज हमारी जमीनें, वो जो गाजर बूटी है वो सफेद फूलों वाली, उससे भर गई है। आज गंदम नहीं है यहाँ पर। ये इतनी बड़ी वादी सहसा सरसावा, ये जो वादी थी, ये पूरे कश्मीर के लिए गंदम और मकई पैदा करने के लिए काफी थी। आज लोग जो है वो मिलों के बाहर और ट्रकों के बाहर, मैंने सुना पिछले दिनों यहाँ शेर मंडी में भी एक ट्रक को जो है वो रोक कर उससे आटा, लोगों ने कहा कि भाई हमें आटा दो। जमीनें बर्बाद कर दी, जंगल काट दिए, मईशत तबाह कर दी, नौकरियां खत्म कर दी। 75 सालों में ये कुछ दिया है। इसके बाद अल्लाह ताला का जो फरमान है, ला युल्दहिल मोमिनु मिनल जुहरिन वाहिद मर्रतैन, मोमिन की ये शान नहीं है कि एक सुराख से 2 दफा डसा जाए। अगर एक दफा डंग लग गया तो दोबारा उंगली नहीं देता मोमिन वहां पर, उसको पता है यहाँ पे आगे सांप है। 75 साल से उसी सुराख में उंगली डाले जा रहे हैं। नूर सुहैन नहीं तो उसका बेटा हमें बचाएगा, क्यूम खान नहीं तो उसका बेटा बचाएगा, सिकंदर याद नहीं तो उसका बेटा बचाएगा। इन सांपों के सुराखों से बाहर निकलने की जरूरत है। ये अवाम का मुल्क है। ये अवाम जो है जब तक खड़े नहीं होंगे, अपने हकूक के लिए नहीं लड़ेंगे, हमारी आने वाली नस्लें जो है वो इसी तरह पासपोर्ट बनवा कर भागती रहेंगी। इस 1 महीने के अंदर
10-15 हज़ार बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियां स्कॉटलैंड शहर से भाग चुके हैं। जो बाकी हैं उनकी जो है वो दरखास्तें प्रोसेस में हैं। कोई इंग्लैंड जाके वहां खजल होगा, कोई यूरोप में खजल होगा, कोई डंकी लगाते हुए मारा जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, इस आजादी की जदोजहद को समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ यहां से फौजों की वापसी के लिए नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल के लिए भी है। और ये इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसी तरह आजादी हासिल की थी। इसी तरह वहां पर भी सहूलतकार थे जो 150 साल यहाँ पर अंग्रेजों की जो है वो माला जपते थे और कहते थे अंग्रेज बड़े तहजीब याफ्ता हैं, अंग्रेज ना होंगे तो हमें तरक्की नहीं होगी, हमें अंग्रेजी नहीं आएगी, हम पढ़ेंगे नहीं। इस चक्कर में 150 साल 20,000 अंग्रेज इस पूरे बड़े सगीर पर जो है वो कब्जा करके उसके बाद यहाँ से लूट के गए। तो 75 साल से जो ये लूट रहे हैं, इनको ये बताने की जरूरत है कि हम यहाँ हजारों सालों से आबाद हैं। ये पहाड़, ये दरिया, ये घाटियां, ये खूबसूरत इलाके हमने आबाद किए हैं, हमारे आबा अजदाद ने आबाद किए हैं। उन्होंने इनको रहने के काबिल बनाया है। कोई चीचू की मलिया वाला या जैकबाबाद वाला या सिपी वाला या लाहौर वाला, उसका कोई हक नहीं है कि वो यहाँ आकर कब्जा करे। इस रियासत का एक कानून है, बाशिंदा रियासत कानून है, उसको पामाल मत किया जाए। मत यहाँ पर पटवारी और गर्दावर अपने 500-500 रुपए के लिए यहाँ के लोगों के मुस्तकबिल जो है उनको दाव पर लगाएं, यहाँ गैर रियासती को आबाद करें और इस मसले को खत्म करें। और आने वाले दिनों में, अभी पिछले 2-4 दिन पहले, ये पंजाब का जो बदमाश है राणा सनाउल्लाह, ये यहाँ पे आया मुजफ्फराबाद में और उसने यहाँ हुक्म दिया है चीफ सेक्रेटरी को और आईटी पुलिस को कि यहाँ वो CTBC काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दूसरे जो पाकिस्तानी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे कायम करो। उसका एक ही मकसद है कि आप लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए आप लोगों को कि आजादी की बात नहीं करनी है, हकूक की बात नहीं करनी है और हमारा मुजावर और हमारा मुरीद बन के रहना है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, दुकानों पे चूहे आते हैं और वो आके लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। कामरान के अबू का क्या नाम है, कामरान कितने भाई हैं, ये कहाँ रहता है, ये कहाँ से खाता है। हमारे मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले का कोई लड़का आ जाए तो सारे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं। ये दूसरे मोहल्ले चुकी आया जी थे, साड़ियां कुड़ियां तकने दे आया, पता नहीं क्या करने दे आया, चोरी करने दे आया, मारो तरफ पड़ी इसकी। तो ये जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लाहौर वाले और सेंट्रल पंजाब वाले मोटरसाइकिल पे बैठ के आपके पास पहुंचते हैं और आपसे पूछते हैं, तो उस वक्त आपकी ये गैरत कहाँ जाती है कि उससे पूछो कौन हो भाई, तुम शनाख्ती कार्ड चेक करो, तुम तो अजनबी हो यहाँ पर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों ये तहकीकात कर रहे हो, क्यों डाटा मांग रहे हो जब तुम्हारे नादरा के आपस में पूरे खानदानों का डाटा पहले से मौजूद है। तो तुम यहाँ आके दुकानदारों से क्यों पूछ रहे हो, तुम आगे मास्टरों को क्यों मजबूर कर रहे हो कि यहाँ पर हमारा तराना गाओ और बच्चों को बोलो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। तुम मस्जिद के मिंबर में पहुंच के खतीब को क्यों मजबूर कर रहे हो कि हमारे हक में दुआएं करो, तुम्हारे हक में तो कोई दुआ कभी कबूल ही नहीं हो सकती, इसलिए कि तुमने अपने आबा और अजदाद के साथ जुल्म किया है, तुमने मजहब का इस्तेसाल किया है, तुमने इखलाक का इस्तेसाल किया, तुमने इंसानियत का इस्तेसाल किया। तुम्हारे ऊपर रहम के दरवाजे बंद हो चुके हैं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती, ये अल्लाह का कानून है। हमारे यहाँ से ये टिंड बोरिया जो है ये उठाओ और जाओ अपने अपने इलाकों में, दिल्ली में जाओ और इस्लामाबाद में वापस जाओ, ये गैरत है। और इसमें कोई आपका जो है वो ना खर्चा होता है और ना कोई मसला है आपको आपके घर में आके कोई धमकाना शुरू कर दे, तो ये कौन सी बात है। मिले हुए हैं मुख्तलिफ लोग, मुखबर बने हुए हैं, जैसे रिज्क इनके पास है, जैसे एजेंसियां ना हो तो कोई आदमी जिंदा नहीं रहेगा, जैसे दुनिया के 200 मुल्कों में लोग ISI नहीं है तो वो लोग जिंदा नहीं है या खुशहाल नहीं है। इन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है, बर्बाद किया है। इस मुल्क का नक्शा जो है, इसकी बर्बादी पाकिस्तान की फौजी और सिविल इस्टेब्लिशमेंट के जिम्मे है और हमें उस बर्बादी का हिस्सा बनने पर मजबूर किया जा रहा है। हमें इस कैद का हिस्सा बनने पर, हमें इस तंगदस्ती का हिस्सा बनने पर जबरन मजबूर किया जा रहा है। इससे जान छुड़ाने के लिए जो मुतालबा है आपका, जो मकबूल मन की आवाज है, वो क्लियर होनी चाहिए, वो वाज़िया होनी चाहिए। ये मिन से काम नहीं चलेगा, मुंह में कुछ दिल में कुछ। हमें मिले तो हम भी आजादी पसंद है,
دوسرے کو ملے تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، تیسرے کو ملے تو ہم تو جی پاک فوج کے ساتھ ہیں، چوتھے کو ملے تو کچھ اتنی بڑی منافقت ہے اس معاشرے کے اندر کہ جس کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ سیدھی اور دو ٹوک بات کریں، یار ہمیں آزادی چاہیے، ہماری ریاست ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں آزادی چاہیے، ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ بچے تو صرف 88 کے بعد قربان کروا دیے۔ 47 کی ہجرت کہاں گئی، 65 کی ہجرت کہاں گئی، 71 کی ہجرت کہاں گئی؟ لاکھوں فیملیاں ڈیوائیڈڈ ہیں، ایک ریاست کے سینے پر ایک لکیر کھینچ کے ہمیں آر پار قید کر کے رکھا گیا ہے۔ اس پار جو ہے وہ لوگوں کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے۔ اس بار جو ہے وہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے، کالے قوانین ہیں، ایکٹ جو ہے وہ برآمد کر کے یہاں پر لائے گئے ہیں اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جیسا ہم کہیں ویسا کرو۔ تو اس کا جواب جو ہم نے دینا ہے وہ آزادی کے نعرے کی شکل میں دینا ہے، یہ ان کی موت ہے۔ اگر کشمیر کے بچوں، کشمیر کے گھروں، یہاں کی آبادیوں کے اندر سے آزادی کی آواز نکلے گی تو خدا کی قسم یہ ان قاتلوں کی، ان ڈاکوؤں کی، ان قابضین کی موت ہوگی، اور یہ تم دبا کے انشاءاللہ تعالیٰ بھاگیں گے۔ آپ کو کسی بندوق کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی گولے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دہشت گردی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نعمتیں آپ پاکستانیوں کے حوالے کریں۔ آپ صرف باہر نکل کر پرعزم ہو کر کلیئر دو ٹوک آواز اٹھائیں، فوجیں یہاں سے باہر نکلیں، ہمیں آزاد رہنے کا حق دیا جائے، چونکہ ہماری آزادی پاکستانیوں کی بھی آزادی ہوگی، ہماری آزادی ہندوستانیوں کی بھی آزادی ہوگی، ہماری آزادی ان بدماش فوجوں سے لوگوں کی آزادی ہوگی، ایک دفاعی بجٹ کے 80% کھانے سے آزادی ہوگی، ایک جنگ دشمن بنا کر ایک دوسرے کو جو ہے وہ فتح کرنے کی اس فضول پریکٹس سے آزادی ہوگی، اور لوگ یہاں پر روٹی کھائیں گے، لوگ پرامن رہیں گے، جیسے یورپ کے لوگ رہتے ہیں، جیسے مڈل ایسٹ کے لوگ رہتے ہیں، جیسے امریکہ میں لوگ رہتے ہیں۔ یہ 21ویں صدی ہے، ہم کوئی 10ویں صدی میں نہیں رہ رہے ہیں کہ ہم لالٹین جلا کے رات کو جو ہے وہ بیٹھے ہیں۔ 21ویں صدی ہے، دنیا ستاروں کی جو ہے وہ گزرگاہوں سے بھی آگے جا چکی ہے۔ صاف مطالبہ، صاف آواز اپنے لیے، پاکستانیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، لوگوں کے لیے، آزادی، مساوات، برابری، خوشحالی، یہ صاف نعرے ہیں، باقی سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے، یہی مقبول ورڈ کا پیغام ہے۔ اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اس جدوجہد کے ساتھ جڑ جائیے، اس جدوجہد کو تکمیل تک لے جائیے، تاکہ کل آپ اپنے آنے والی نسلوں میں اپنی تاریخ میں سرخرو ہو سکیں۔ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے، فقط پیرا نہیں دینا ہمیں تاریخ گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔